A very good morning, dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. Very warm welcome to all of you in today's lecture on this day in history. एक ऐसा सेगमेंट जो आपके सामने प्रस्तुत करता है इतिहास से संबंधित वो सभी खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक है. And along with this, we will also share some important practice questions with you towards the end of today's lecture. क्योंकि ये सभी questions आज के ही facts पे आधारित हैं, आप इनके उत्तर देने का अवश्य प्रयास कीजिए और इनके आंसर्स निरंतर शेयर कीजिए हमारे साथ कमेंट सेगमेंट में. तो आइए अब शुरू करते हैं 26 जुलाई अर्थात आज के दिनांक से जुड़े सभी important facts की. The very first fact of today is associated with 1876 when the Indian Association was founded. अर्थात आज के दिन Indian Association की स्थापना करी गई थी. The Indian Association was the first avowed nationalist organization that was founded by Surendranath Banerjee and Anand Mohan Bose during British India in the year 1876. इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट बाय एवरी लेजिटिमेट मीन्स पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल एंड मटेरियल एडवांसमेंट ऑफ इंडियन पीपल. यह एक पायनियर ऑर्गेनाइजेशन था उस समय का जिसका एक पैन इंडिया आउटलुक था. इसके पहले शिशिर कुमार घोष अलोंग विद शंभू चरण मुखर्जी ने एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी थी इन कैलकाटा जिसे कि द इंडियन लीग बुलाया जाता था. This had been done on 25th September 1875. और इस लीग ने समाज के मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व किया और लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहित करने और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया, परंतु यह ज्यादा समय तक नहीं चल सकी और इसके पश्चात इवेंचुअली द अफोरमेंशन्ड इंडियन एसोसिएशन वाज फाउंड. अगर बात करें कुछ अन्य नेताओं की जो इस संस्थान से जुड़े थे, सो दे वर लीडर्स लाइक शिवनाथ शास्त्री, कृष्णोदास पाल, द्वारकानाथ गांगुली, नरेंद्र किशोर एंड अदर्स. अगर इंडियन एसोसिएशन के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, सो रेव कृष्ण मोहन बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस were elected the first president and secretary respectively of the association. The association gave young middle class community a political platform on a more democratic basis. Under the able leadership of its leaders, the association demanded many things such as simultaneous holding of civil services exam in England and India as well as Indianization of higher administrative posts. Besides, the association led campaign against Repressive Arms Act of 1878, the Vernacular Press Act, and the exemption of duties on cotton goods. The association, under the leadership of Surendranath Banerjee, organized boycott and Swadeshi movement against the partition of Bengal, raised a national fund, drew up a national education policy, and eventually in 1906 formally inaugurated the National Council of Education. और अब इसके साथ आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है. तो ये है संबंधित 1958 से when American Satellite Explorer 4 was launched. अर्थात आज के दिन अमेरिकी उपग्रह एक्सप्लोरर 4 का प्रक्षेपण किया गया था. Explorer 4 was a cylindrically shaped satellite instrumented to make the first detailed measurements of charged particles, including protons and electrons trapped in the terrestrial radiation belts. इसे लॉन्च किया गया था जूनो 1 रॉकेट की सहायता से and the mission was essentially a secret hidden from the knowledge of public up to a period of 6 months. डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी ने 2 उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाई थी फॉर द पर्पस ऑफ स्टडीइंग द वैन एलन रेडिएशन बेल्ट्स
and the effect of nuclear explosion on these belts. एक और उद्देश्य था to undertake a study of Earth's magnetosphere in general. परंतु Explorer 4 was the only satellite that was able to get launched क्योंकि दूसरी satellite Explorer 5 suffered a launch failure. वैन एलन बेल्ट के बारे में तो हम सभी ने सुना होगा कि किस प्रकार इट इज अ जोन ऑफ एनर्जेटिक चार्ज्ड पार्टिकल्स, ज्यादातर जिनका ओरिजिनेशन होता है सोलर विंड्स में, एंड these particles are captured by and held around the planet by Earth's magnetosphere. पृथ्वी के पास ऐसी दो बेल्ट्स हैं और इनका नाम रखा गया है जेम्स वैन एलन के स्मरण में, हु इज क्रेडिटेड विद देयर डिस्कवरी. मिशन का ड्यूरेशन लगभग 71 डेज का था एंड लेटर इट इज बिलीव्ड दैट एग्जॉस्शन ऑफ पावर बैटरीज caused several problems and failures in the mission, जिसके कारण spacecraft had decayed from the orbit after a period of 454 days on October 23rd, 1959. और अब इसके साथ आइए आज का अगला फैक्ट देखते हैं जो है संबंधित 1997 से, when श्रीलंका won the Asia Cup of that year, अर्थात 1997 का एशिया कप श्रीलंका के द्वारा जीता गया था. The 1997 एशिया कप, जिसे अक्सर पेप्सी एशिया कप 1997 भी बुलाया जाता है, was the 6th एशिया कप टूर्नामेंट और दूसरा ऐसा जो कि श्रीलंका में आयोजित हुआ था. The tournament took place between July 14 and 26 in the year 1997 और 4 टीमों ने इसमें भाग लिया था, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश. यह एक राउंड रॉबिन टूर्नामेंट था, एक ऐसा टूर्नामेंट जहां ईच टीम हैड प्लेड द अदर जस्ट वंस एंड देन द टॉप 2 टीम्स लेटर क्वालिफाइड अ प्लेस फॉर देमसेल्व्स इन द फाइनल मैच. भारत और श्रीलंका दोनों ने ही फाइनल मैच के लिए क्वालिफाई किया और इसमें इवेंचुअली श्रीलंका की विजय हुई बाय 8 विकेट्स एंड विद दिस श्रीलंका रजिस्टर्ड इट्स सेकंड एशिया कप विक्ट्री. और इसी संदर्भ में ये जानना भी आवश्यक है कि आखिर द एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया कप क्या है. सो इट इज अ मेंस वन डे इंटरनेशनल एंड 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट और इसकी शुरुआत भी 1983 से ही हुई थी, एक ऐसा वर्ष when the Asian Cricket Council was founded. एशियन क्रिकेट काउंसिल एक ऐसा संगठन है जिसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट गुडविल बिटवीन द कंट्रीज सिचुएटेड इन एशिया. अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर्स या मुख्यालय की तो ये है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में सिचुएटेड. और अब इसके साथ आइए आज का अगला फैक्ट देखते हैं. यह है कि किस प्रकार आज के दिन प्रति वर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, अर्थात आज के दिन कारगिल विजय दिवस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर. इंडिया ऑब्जर्व्स कारगिल विजय दिवस on 26th July each year to mark the anniversary of the day the country achieved victory over Pakistani infiltrators in the 1999 Kargil War. The Kargil War, which broke out in May 1999, had continued for a period of 60 days up until 26th July, जिस दिन ऑफिशियली इस युद्ध को समाप्त किया गया था. ये जानना भी आवश्यक है that what exactly had happened during the course of this war. तो जैसा कि हम जानते ही हैं, the local shepherds first reported कि 3 मई 1999 को जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के बाल्टिस्तान जिले में कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठिया आक्रमण कर चुके थे. The Indian Army then set up patrolling units along the area on 5th May. 5 Indian patrolling soldiers, including Captain Saurabh Kalia, were captured by Pakistani forces alive and brutally tortured to death. इसके बाद heavy shelling by Pakistanis had begun on the 9th of the same month. This was meant as a cover to engage Indian troops so that infiltrators आसानी से इंडियन टेरिटरी along the LOC में कब्जा कर सकें. Infiltrations occurred in many regions
including Dras, Mushkoh, and Kaksar sectors. The Indian Army moved its troops from Kashmir Valley to Kargil sector during mid-May. भले ही शुरू में भारतीय सेना को इस तरह का इन्फिल्ट्रेशन एक सरप्राइज के रूप में मिला, परंतु दृढ़ निश्चय के साथ सेना ने बहादुरी से लड़ा, even in the most hostile environments of mountainous area and in regions of high altitude and harsh and cold weather conditions. On 4th July, the Indian Army was able to capture Tiger Hill after a battle that lasted around 11 hours. और अगले ही दिन इंडिया ने द्रास को भी वापस ले लिया। और ये दोनों बेहद ही आवश्यक और जरूरी उपलब्धियां थी इस युद्ध में भारत के फेवर में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी Pakistan was being criticized for this kind of an infiltration, and US, that was led by Bill Clinton at that point of time, had asked Pakistan's Nawaz Sharif to withdraw the troops immediately. 5 जुलाई को Pakistani premier announced that Pakistan was prepared to withdraw the troops, or the pullout by Pakistani forces eventually then started on the 11th. 14 जुलाई को the then Prime Minister of India Atal Bihari Vajpayee announced that Operation Vijay was a success. Operation Vijay वो कोड नेम था जो कारगिल वॉर को दिया गया था. The war officially came to an end on 26 July when all Pakistani intruders were evicted successfully from Indian soil. इस युद्ध में न कि सिर्फ यूएस बल्कि G8 countries, the ASEAN group and the European Union also supported India's stand openly. देश की रक्षा करते करते the official Indian death toll was 527 and around 1300. In fact, more Indian soldiers were wounded in the conflict. और अब इसके साथ आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमें करने हैं सॉल्व. The very first one is, who among the following was one of the founders of the Indian Association? अर्थात निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? ऑप्शंस हैं ए सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी आर दास, और इज इट डी महात्मा गांधी? आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, which organization was founded by शिशिर कुमार घोष in 1875 at Calcutta? अर्थात कलकत्ता में वर्ष 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा किस संगठन की स्थापना करी गई थी? ऑप्शंस में कुछ नाम है सच एज द इंडियन लीग, बी इंडियन एसोसिएशन, सी बंगाल लीग, और विल इट बी डी इंडिपेंडेंस एसोसिएशन? आज का तीसरा क्वेश्चन है, व्हेन वाज द अमेरिकन सैटेलाइट एक्सप्लोरर 4 लॉन्च्ड? अर्थात अमेरिकी उपग्रह एक्सप्लोरर 4 कब प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शंस में कुछ वर्ष है which are A 1956, B 1957, C 1958, or will it be D 1960? The fourth question is, who had won the 1997 Asia Cup? अर्थात 1997 वर्ष में एशिया कप किसने जीता था? ऑप्शंस है ए इंडिया, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका, और was it D बांग्लादेश? The fifth question is, where are the headquarters of the Asian Cricket Council situated? अर्थात एशियाई क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है स्थित? ऑप्शंस है ए ढाका, बी न्यू दिल्ली, सी कोलंबो, और इज इट डी इस्लामाबाद? With this, the sixth and the last question of today's lecture is, when is the Kargil Vijay Divas observed? अर्थात भारत में कारगिल विजय दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? ऑप्शंस है ए 24 जुलाई, बी 25 जुलाई, सी 26 जुलाई, और इज इट डी 27 जुलाई? और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा. फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए. विद दिस, हैव अ ग्रेट डे, प्लीज स्टे सेफ, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू.